Two blocks, 1 and 2, are placed on an inclined plane, forming an angle alpha with horizontal. Forming an angle alpha with horizontal. The masses of the two blocks are M1 and M2. Masses of the two blocks are M1 and M2, and coefficient of friction between the inclined plane and blocks. Coefficient of friction between inclined plane and blocks is mu1 and mu2 respectively, with mu1 greater than mu2. Find the force of interaction. Find the force of interaction of the bars in the find the force of interaction of the blocks in the process of motion and minimum value of alpha for which the block starts sliding down. Minimum value of alpha for which the block starts sliding down. So हमारे साथ में diagram given है. You have an inclined plane of inclination alpha. इसके ऊपर दो blocks पड़े हैं. इसका coefficient of friction mu2 m1 और inclined plane में mu1. हमने बताना है what will be the force of interaction. Force of interaction मतलब m1 ने m2 पे कितनी force लगाई या m2 ने m1 पे कितनी लगाई. And second you have to find alpha के minimum value कितनी हो ताकि slide करना शुरू हो जाए, नीचे आना शुरू हो जाए. ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? हमें साथ में एक कंडीशन दी है कि mu1 is greater than mu2. mu1 is given as greater than mu2. You have to find the force of interaction and the minimum value of alpha for which the block slides down. करो ट्राई. इसको पहले कैसे करोगे? फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ. मार्क ऑल द फोर्सेस which are acting on the body. Mark all the forces which are acting on the body. अगर हम पहले M1 का डायग्राम बनाएं, इसके दो कंपोनेंट्स M1G cos alpha normal reaction आ गई. Now what about force exerted by M2 on M1? किस डायरेक्शन में होगी? M2 M1 पे डाउनवर्ड फोर्स Downward. लगाएगा या अपवर्ड? Downward. डाउनवर्ड. So उसको कुछ मार्क कर लेते हैं. Let it be say this force be P. अगर हम फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में इस पे? अपवर्ड्स. कितनी? Mu M1G cos alpha. mu1 m1g cos alpha. Similarly M2 का डायग्राम बना लेते हैं. M2 पे कौन कौन सी फोर्सेस?
This will be m2g sine alpha, m2g cos alpha, normal reaction R2, m1 m2 पे किधर फोर्स लगाएगा? upwards. Upward. रिएक्शन, because P downwards था तो ये P upwards. फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में? Upward. m2 tries to move down or tries to move up? नीचे ही Down. आएगा. Down. Friction upwards. mu2 m2g cos alpha. So you have to find P. What will be the force exerted by m1 on m2 or m2 on m1? करो solve इसको, क्या आएगा आंसर? सर ये मूव कर रहे हैं दोनों ब्लॉक्स, क्या? ये दोनों ब्लॉक्स इस पर है कि मूव कर रहे हैं? अभी हमने मूव नहीं करा है. मूव के लिए तो फिर कंडीशन निकालनी है अल्फा के मिनिमम वैल्यू कितनी हो ताकि ये मूव करें. ठीक है सर. आंसर सेम रहना चाहिए. अगर वो मूव करें तो भी, रेस्ट पे हो तो भी. अब मेरे को लॉजिकली सोच के बताओ, इनमें से अगर m1 की एक्सेलरेशन m2 से ज्यादा होती, मैं अगर मूवमेंट भी एज्यूम कर लूं, अगर m1 की एक्सेलरेशन m2 से ज्यादा होगी, वो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? सर वो अलग हो जाएगी बॉडीज. अलग हो जाएंगी, फोर्स नहीं लगाएंगे. अगर तो ये फोर्स कब लगाएंगे? ये फोर्स तब लगाएंगे अगर ये दोनों एक ही एक्सेलरेशन से मूव करते हैं और ये कांटेक्ट में रहते हैं. ये फोर्स उसी कंडीशन में लगाएंगे इफ दे रिमेन इन कांटेक्ट. तो उसको सॉल्व कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा कि इफ दे रिमेन इन कांटेक्ट. रिमेन इन कांटेक्ट के दो ही केस हो सकते हैं, आइदर दे आर मूविंग विद सेम एक्सेलरेशन, या फिर हो सकता है कि देयर एक्सेलरेशन इज जीरो. लिख लो इसके ऊपर कंसेप्ट. The interaction force exists between the two blocks. Interaction force exists between the two blocks if they are moving. If they are moving with common acceleration. If they are moving with common acceleration. If they are moving with common acceleration. Because, हाँ जी, सर इसमें जो m2 की एक्सेलरेशन है वो m1 से कभी ज्यादा तो नहीं हो सकती? और डायग्राम देख के पता चल रहा है उसके ऊपर से निकल जाएगा वो. ओके सर. उसको साथ ही लेके जाएगा ना, आगे कैसे निकल जाएगा उससे? So you can write with common acceleration. Therefore, the limiting value of alpha. Therefore, the limiting value of alpha for motion to start is. Limiting value of alpha for motion to start is. Where the downward external force will just balance the
where the downward external force just balance the सर लास्ट लाइन रिपीट कर दो. the limiting value of alpha for motion to start is the downward external force just balance the upward frictional force. There is डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सी फोर्सेस है जो उसको मूव कराने की कोशिश कर रही हैं? m1 g sin M1 अल्फा G प्लस sin- m2 g sin अल्फा. अगर ये वैल्यू फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाएगी या एटलीस्ट उसके इक्वल हो जाएगी, this gives us that we say alpha should be at least equal to this value. G को मैंने कैंसिल कर दिया. This is minimum value of alpha for motion to begin. अब अगर ये कॉमन एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं तो कॉन्टैक्ट फोर्स कितनी होगी? अगर इनकी एक्सेलरेशन कॉमन है, मगर if they move with common acceleration e, तो फर्स्ट की फ्री बॉडी इक्वेशन बताओ. अगर ये दोनों नीचे आ रहे हैं एक ही एक्सेलरेशन से, फर्स्ट की फ्री बॉडी M- इक्वेशन क्या बनेगी? M1 G sin sin alpha plus p m1 g sin अल्फा प्लस p minus माइनस म्यू mu1 m1 m1 g cos अल्फा is equal to MA. m1 a. सेकंड की, सेकंड का डायग्राम M2 G sin m2 g sin अल्फा minus P is equal to M2A. कॉमन एक्सेलरेशन निकालनी है तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं इक्वेशंस को, p कैंसिल हो जाएगा तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई? m1 प्लस m2 g sin अल्फा माइनस ए आ गया. इसकी वैल्यू किसी एक इक्वेशन में डाल के हम p निकाल सकते हैं. हो जाएगा सॉल्व. Yes, sir. नेक्स्ट लिखो. हमें दिया है इस तरह से सिस्टम. व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बार ए? क्वेश्चन एक बार ध्यान से देख लो. बार ए की मिनिमम एक्सेलरेशन बतानी है. should be shifted horizontally to keep bodies 1 and 2 stationary relative to the bar. The masses of bodies are equal.
Coefficient of friction between the bar and the bodies is equals to mu. The masses of pulley and threads are negligible. Friction is absent. हमें क्वेश्चन में दिया ये वाला जो बड़ा ब्लॉक है इसको हम किस एक्सेलरेशन से मूव करें so that these two 1 and 2 remains at rest relative to the block. बड़े ब्लॉक के रिलेटिव ये रेस्ट पे रह रहे हैं. So हमने बताना है बड़े ब्लॉक की एक्सेलरेशन कितनी होनी चाहिए. अगर इसका डायग्राम बनाऊं मैं इन दोनों का मास सेम दिया. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दोनों सरफेसेस के लिए म्यू. मैं इसको रिलेटिव टू ग्राउंड सॉल्व करूं या रिलेटिव टू ब्लॉक सॉल्व करूं? Because relative to ground solve तो that is inertial frame. Relative to block solve करता हूं तो that is non-inertial frame. Relative to ground solve करूंगा तो मेरे को pseudo force नहीं लेनी है. मैं relative to block solve करूंगा तो pseudo force भी लेनी है. तो कौन से relative solve करें? Ground. Relative to block because हमें दिया है it's at rest relative to the block. क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही कहा था उन्होंने, देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना था. What they have said, they are stationary relative to the bar. तो it will be easier अगर आप relative to bar ही solve करोगे ground frame की जगह. तो अगर मैं ground frame में solve नहीं करता, मैं इसको इसके block के frame में solve करता हूँ. ब्लॉक को मैंने माना है कि इधर एक्सेलरेट कर रहा है विद एक्सेलरेशन a. पहले इस पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते. mg एक्टिंग डाउनवर्ड्स, फर्स्ट ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन r1, इधर स्ट्रिंग लगी है, टेंशन इन द स्ट्रिंग. सूडो फोर्स किस डायरेक्शन में इस ब्लॉक पे? लेफ्ट साइड, राइट साइड? लेफ्ट साइड. लेफ्ट साइड. सूडो फोर्स m में. फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में? MA की डायरेक्शन. एमए की डायरेक्शन. ma की डायरेक्शन में. फ्रिक्शनल फोर्स इधर मार्क कर दूं, कितनी? म्यू r1. देख लेना गलत ना हो जाए, आपके हिसाब से सॉल्व कर रहा हूं मैं. इस पे फोर्सेस स्ट्रिंग, नॉर्मल रिएक्शन, सूडो फोर्स, फ्रिक्शन किधर? अपवर्ड फ्रिक्शन. आपने जब फ्रिक्शन इधर मार्क की थी लेफ्ट साइड पे, तो आपने क्या एज्यूम किया था? ब्लॉक इज ट्राइंग टू मूव टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट? राइट. फ्रिक्शन right. को आएगी. अगर ये राइट जाएगा तो ये डाउन. नीचे आएगा. इस पे फ्रिक्शन अपवर्ड. कितनी फ्रिक्शन कितनी इस ब्लॉक पे? म्यू MA. म्यू r2. म्यू r2 एंड r2 इज ma. हमें दिया सिस्टम इज एट रेस्ट.
रेस्ट पे तब रहेगा जब नेट फोर्स 0 होगी। अगर नेट फोर्स 0 करें तो फर्स्ट ब्लॉक की इक्वेशन क्या बनेगी? और सेकेंड ब्लॉक की इक्वेशन? सेकेंड ब्लॉक की T is इक्वेशन T T plus mu ma is equals to mg. मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इस इक्वेशन को, और फर्स्ट इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है? Yes, sir. अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, टी कैंसिल हो गया, ए की वैल्यू कितनी आ गई? देखो क्लियर है सबको? yes sir. Excuse me, sir. हाँ जी। सर फर्स्ट ब्लॉक की फ्रिक्शन राइट साइड पे नहीं होगी, क्योंकि वो मतलब दूसरे ब्लॉक के रिलेटिव, तो अगर वो ब्लॉक आगे जा रहा है ए ब्लॉक, तो वो पीछे को मूव ऐसे नहीं करेगा करते, उसके ऐसे बाद। आप दोनों तरफ ले सकते हो, पर आपको दोनों की कंसिस्टेंट लेनी है। मैंने अगर इसकी फ्रिक्शन इधर मार्क किया, मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये राइट साइड जाने की कोशिश कर रहा है, फ्रिक्शन अपोज कर रही है, तो ये राइट साइड जाएगा तो ये नीचे आएगा, फिर इस पे फ्रिक्शन ऊपर। आप इस पे फ्रिक्शन अगर राइट साइड मार्क करोगे, इस पे फ्रिक्शन डाउनवर्ड मार्क करनी पड़ेगी, आंसर फिर भी सेम ही आएगा। आपको ये एज्यूम करना पड़ेगा कि आप क्या मान के चल रहे हो, किधर मूव कर रहा है, राइट साइड जाएगा या लेफ्ट साइड, तो उससे आंसर चेंज नहीं होते। ओके सर। देखो इस क्वेश्चन में किसी को कुछ नहीं आया समझ तो? क्लियर है सबको ये? यस सर। नेक्स्ट। हमें दिया prism 1 with bar of mass m placed on it gets horizontal acceleration w directed to the left. At what maximum value of this acceleration will the bar be stationary relative to the prism? Coefficient of friction between them is k less than cot alpha. हमने बताना है this should remain at rest. क्वेश्चन समझ आया? ध्यान से देख लो, क्वेश्चन समझ आ रहा है सबको? यस हमें दिया है कि this maximum value of acceleration will the bar be stationary? It's placed on horizontal acceleration directed to the left. मैं acceleration इधर है ये। Excuse me, sir. हाँ जी।
क्वेश्चन समझ नहीं आया। हमने बताना है इसकी कितनी एक्सेलरेशन हो सो दैट ब्लॉक 2 रिमेन्स एट रेस्ट। ब्लॉक 2 स्लाइड नहीं करना चाहिए और हमें कंडीशन दी है म्यू इज लेस देन कॉट अल्फा। ये वैसे क्यों दी है म्यू इज लेस देन कॉट अल्फा? Why this condition mu is less than cot alpha? अगर म्यू कॉट अल्फा से ज्यादा होगा तो सर वो अरे स्लाइड नहीं करेगा। क्यों ऐसा क्या है? हमने कंडीशन क्या निकाली थी? एंगल ऑफ रिपोज का फॉर्मूला क्या था? tan इनवर्स u। म्यू इज अल्फा tan अल्फा इज इक्वल्स टू म्यू। तो अगर tan अल्फा म्यू से ज्यादा होगा तो स्लाइड करेगा या नहीं करेगा? tan अल्फा म्यू से ज्यादा होगा तो स्लाइड करेगा कि नहीं करेगा? सर नहीं, एंगल ऑफ रिपोज की डेफिनेशन ही यही थी कि अल्फा वो एंगल होता है जिसके बाद स्लाइडिंग शुरू हो जाएगी। तो अगर एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा होगा तो स्लाइड करेगा। तो हमें दिया कि अगर tan अल्फा की वैल्यू अगर म्यू से ज्यादा होगी तो स्लाइड करेगा, तो कॉट अल्फा की वैल्यू म्यू से ज्यादा होगी तो वो स्लाइड नहीं करेगा। मतलब एंगल ऑफ रिपोज के ऑपोजिट दे दिया ना। एंगल ऑफ रिपोज में था कि if tan alpha is equals to mu it just begins to slide. So if tan alpha is greater than mu it will slide. If cot alpha is greater than mu it will not slide. So अपने आप तो इसने स्लाइड नहीं करना था, नीचे हमें गिवन है। हमने इसको लेफ्ट साइड को एक्सेलरेट किया तो हमने बताना है ए की एक्सेलरेशन की जो इसमें W दिया हुआ है मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो so that the block 2 remains at rest. फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, सॉल्व करो एक बार खुद से, फिर देखते हैं क्या करते हो। What should be the acceleration of prism? हाँ जी, सर एक पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कॉमन डाउट है क्या? सर। उसमें दोनों क्वेश्चंस में गिवन है रिलेटिव टू द, जो उन्होंने नीचे दिए हुए हैं पीछे ब्लॉक और इसमें प्रिज्म, तो उस लाइन का थोड़ा मतलब कंफ्यूज कर रहा है। रिलेटिव मैंने अभी बताया, रिलेटिव टू ब्लॉक सॉल्व करने का मतलब है कि आप उसको नॉन इनर्शियल फ्रेम में ले रहे हो। नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो सूडो फोर्स लेनी है, इनर्शियल फ्रेम है तो नहीं लेनी। आप रिलेटिव टू ग्राउंड सॉल्व करते हो तो आपको फिर सूडो फोर्स कभी मार्क नहीं करनी होती, बिकॉज सूडो फोर्स हमेशा नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में ही लगती है। इस पे फोर्सेस जो लग रही हैं एक्सेलरेशन को मैं ए ही ले रहा हूँ W की जगह, बिकॉज वो हैबिट उसको ए किया है तो उसको ए ही रहने देते हैं। इसका मैग्नीट्यूड ए है, ठीक है। अब अगर मैं लॉजिकली सोचूं, जब इधर एक्सेलरेट करेगा सूडो फोर्स बैकवर्ड लग रही है, एक्सेलरेशन बढ़ाने से mg में कोई चेंज आ रहा है? मैं अगर इसको a को बढ़ाता हूं वेट तो नहीं बदलेगा, ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। एक स्टेज आएगी जब इसके कारण ये ऊपर को एक्सेलरेट करना शुरू होगा। तो इसके कंपोनेंट्स बनाए अगर हम, दिस वुड बी ma cos alpha, ma sin alpha, because it tends to move upward, frictional force is downwards. और ये mg sin alpha और इधर एक कंपोनेंट और आएगा mg cos alpha। वर्टिकली तो ये डिस्प्लेस हो नहीं रहा, दैट मींस r is
mg cos alpha plus ma sin alpha. For equilibrium along the inclined plane. यही बनेगा इक्विलिब्रियम along inclined plane. R की वैल्यू पुट कर दो. m पूरी इक्वेशन में कैंसिल हो जाएगा. या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ. ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन क्यों है? बिकॉज मैं मैक्सिमम वैल्यू कहा था. दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए बिकॉज वी आर यूजिंग लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन. इससे कम भी हो सकती थी फ्रिक्शन और एक्सेलरेशन इससे कम भी हो सकती थी. तो हमने फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ली है इसलिए ए की भी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है. तो आपका लॉजिक ठीक होना चाहिए कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन किस तरफ है, उससे अकॉर्डिंगली आंसर आएगा. देखो इसमें कुछ नहीं आया समझ. हाँ जी. तो आपने इसमें mg cos अल्फा rc किया हुआ है फ्री डायग्राम में. क्या किया? इसके mg के दो कंपोनेंट्स नहीं थे, एक mg cos एक mg sin. तो mg cos भी तो बनाना था इसी डायरेक्शन में. mg के ऐसे ही तो हम दो कंपोनेंट बनाते हैं. ये mg है, ये mg cos है और ये mg sin है. तो कंपोनेंट बनाया ना मैंने mg cos अल्फा. सिमिलरली ma के दो कंपोनेंट्स ma sin अल्फा ma cos अल्फा. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी. सर ये समझ नहीं आया कि ये ऊपर को क्यों जाएगा. अब मेरे को एक बात बताओ, जब ये एक्सेलरेशन को बढ़ाऊंगा इनमें से कौन सी फोर्स बढ़ेगी? तीन बेसिक फोर्सेस में से mg r या ma. ए को बढ़ाने से MA एमए. तो ma किस डायरेक्शन में लेके जा सकता है? बॉडी को नीचे ला सकता है या ऊपर लेके जा सकता है? ma का कंपोनेंट्स तो इधर है ना, ऊपर ही लेके जा सकता है, नीचे कैसे लेके आएगा? तो अगर बॉडी को ऊपर लेके जाएगा तो फ्रिक्शन तो नीचे ही लगेगी. ओके सर. सो आपको सिर्फ ये देखना होता है बॉडी किधर मूव करेगी, उसके अकॉर्डिंगली फ्रिक्शन की डायरेक्शन डिसाइड करनी है. और बॉडी किधर मूव करेगी वो आपको फोर्सेस देख के पता चलेगा. कर लिया नोट ये?
सर बोर्ड ब्लर आ रहा है वो। ब्रॉडकास्ट से देख लो, ब्रॉडकास्ट में अगर क्लियर है तो, बिकॉज में डायग्राम नजर आ जाता है ना। सर फोन पे हेरोडोव की बुक है, मैं बुक का क्वेश्चन बता देता हूँ। सर नो फिर क्वेश्चन डायग्राम नजर आ रहा है। सर बस वो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, ये जो बीच में उसके मार्क की कोड, ये सब सर कुछ नहीं दिख रहा है। यस सर। एक बार रिकनेक्ट करके देख लो, सबको ब्लर्ड आ रहा है। यस सर। सर ब्रॉडकास्ट Yes, यस sir. सर। सर आ रहा है। मैं तो डायग्राम को बड़ा कर सकता हूँ बिकॉज छोटा है। सर अब सही है। सर अब ठीक है। यस सर दिख रहा डायग्राम है। छोटा था मतलब। सो बेसिकली आपको इसमें बताना है दैट क्वेश्चन रीड कर देता हूँ मैं। हमें दिया इन द अरेंजमेंट शोन मास ऑफ वेज इज कैपिटल M and the body of mass M are known. The appreciable friction exists only between wedge and body. दोनों blocks के बीच में friction है, coefficient of friction mu है. Masses of pulley thread are negligible. Find acceleration of body M relative to horizontal surface. हमें small m की acceleration बतानी है relative to horizontal surface, not relative to wedge. इसकी acceleration relative to horizontal surface. और इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन दिया है, इट्स कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। सर अभी डायग्राम हुआ नहीं था। तो इसका अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, मैं बस ऐसे दिया है कि एक ये वेज है, इसका मास कैपिटल M, इसका मास स्मॉल m, और ये यहाँ से फिक्स्ड है। हमने एक्सेलरेशन बतानी है स्मॉल m की रिलेटिव टू ग्राउंड। एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m रिलेटिव टू ग्राउंड। सो दोनों ब्लॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे एंड फाइंड द एक्सेलरेशन। पहले मेरे को सिर्फ ये बताओ, इन दोनों की जो एक्सेलरेशन होगी वेज की रिलेटिव टू ग्राउंड और ब्लॉक की रिलेटिव टू वेज, ये सेम होगी या डिफरेंट होगी? एक्सेलरेशन ऑफ वेज रिलेटिव टू द ग्राउंड, एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m रिलेटिव टू द वेज, ये एक्सेलरेशन सेम होंगी या डिफरेंट होंगी? डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट। क्यों डिफरेंट? क्यों सर सेम। सेम? क्यों? मेरे को ना ऐसे चीजें समझ नहीं आती जब तक रीजन ना बताया जाए। मेरे को सेम और डिफरेंट दोनों चलेगा, बस रीजन बता दो क्या है बस। अदरवाइज मेरे को नहीं समझ आता। आपको कैसे पता चलेगा दोनों की एक्सेलरेशन सेम है या डिफरेंट है? बिकॉज हमने निकालनी रिलेटिव टू वेज नहीं है, हमने ब्लॉक की एक्सेलरेशन रिलेटिव टू ग्राउंड निकालनी है। सर डिफरेंट होगी।
डिफरेंट होगी। क्यों डिफरेंट होगी? सर अगर हम वेज के उसमें निकाले तो फिर सूडो फोर्स भी हमारे को एक्ट करानी। यार फोर्स का एक्सेलरेशन से क्या ऐसे, मतलब मैं तो दोनों की एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ, कहाँ सूडो फोर्स? मैं तो फ्री बॉडी डायग्राम पे गया ही नहीं अभी। फ्री बॉडी डायग्राम में ही तो जरूरत पड़नी है कि दोनों की एक्सेलरेशन सेम लूं या अलग अलग लूं। मतलब मैं दोनों को ए लूं या एक को A1 लूं एक को A2 लूं, तो वो पहले पता होना चाहिए। इस डिस्टेंस को मानो x1, इसको L, इसको y। यहां से लेके इस पॉइंट तक ये एक ही रस्सी है। मैं आपसे पूछूं टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी है? x1 + L + 1। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। क्योंकि लेंथ कांस्टेंट है, इनएक्सटेंसिबल Inextensible. लेते हैं। इसका मतलब dx1/dt plus dl/dt plus dy1/dt, this should be 0। इसकी वैल्यू क्या होगी? ये लेंथ बदलेगी कभी भी? L चेंज No, होगा sir. ही नहीं, No sir. तो ये तो 0 ही है। ये तो कांस्टेंट है L। मतलब dx1/dt is equals to minus dy1/dt। नेगेटिव साइन क्या सिग्निफाई कर रहा है? Opposite direction. Direction. नेगेटिव साइन सिग्निफाई कर रहा है अगर y1 बढ़ेगा तो x1 कम होगा। डायरेक्शन, जहां नेगेटिव साइन देगा डायरेक्शन, ये इंडिकेट कर रहा है कि जब ये नीचे आना शुरू होगा तो y1 बढ़ना शुरू हो जाएगा और x1 कम होना शुरू हो जाएगा। dy1/dt किसकी वेलोसिटी है? Small स्मॉल m. m की। और dy1/dt, सॉरी, dx1/dt इज कैपिटल M, बिकॉज x1 इसका वेज का डिस्टेंस है यहां से, और dy1/dt इसकी वेलोसिटी है। सो इनकी वेलोसिटीज का मैग्नीट्यूड सेम है, एक्सेलरेशन का भी सेम ही आएगा। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो इट विल बी सेम, दोनों का सेम है। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यही आएगा। सो अगर ये A से नीचे आता है, ये A से इधर जाएगा, मतलब इफ इट मूव्स डाउन विद A1 तो ये इधर मूव करेगा विद A1। अब फ्री बॉडी बनाते हैं। पहले इसका फोर्सेस बताओ कौन कौन सी लग रही हैं इस पे? फोर्सेस Downwards mg. mg, MA1 downwards. फ्रिक्शन भी है। फ्रिक्शन भी है। फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में? Upwards. Upward. अपवर्ड्स। नॉर्मल रिएक्शन राइट साइड। ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व कर रहा हूं, तो सूडो फोर्स नहीं है। ग्राउंड फ्रेम में सूडो फोर्स नहीं होती। ये नीचे एक्सेलरेट कर रहा है विद A1। अगर मैं वेज की बात करूं, इस पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? Normal reaction of small m. mg,
R डैश और कोई फोर्स लग रही है? नॉर्मल रिएक्शन ऑफ स्मॉल m लगाऊं बैकवर्ड डायरेक्शन में? यस सर। देख लेना कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है डायरेक्शंस आर की। सर तो मेरे को बताओ व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक रिलेटिव टू द ग्राउंड। लेट्स सी क्या करते हो। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक रिलेटिव टू द ग्राउंड। एक फोर्स वेज पे मिसिंग है, मेरे को दिख रही है, देख लो कौन सी। वेज पे एक फोर्स मिसिंग है, चाहे उससे आंसर आपका गलत नहीं होगा, बट फोर्स कौन सी? सर राइट साइड में टेंशन। राइट साइड में टेंशन और बिकॉज स्ट्रिंग अटैच्ड है उसके साथ। अरे ऊपर को टेन। और कौन सी? और सर जो मास हमने पुली के थ्रू हैंग किया है वो वाली फोर्स इस पे थोड़ी लग रही है। वो तो हमने इसमें ले लिया ना। आप ये वाला वेट कह रहे हो, वो तो इस पे लग रही है, mg तो इसका वेट है। सर जो ऊपर वाला पुल है, ऊपर वाले पुली पे क्या लूं मैं, कौन सी फोर्स मार्क करूं? ये दो स्ट्रिंग्स हैं और ये कौन सी फोर्स थी? फ्रिक्शन। 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 किसने लगाई थी किस पे? स्मॉल एम ने कैपिटल एम ने स्मॉल एम पे लगाई थी। कैपिटल एम ने स्मॉल एम पे लगाई थी, तो स्मॉल एम कैपिटल एम पे किधर लगाएगा? डाउनवर्ड। 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 वर्टिकल फोर्सेस से फर्क नहीं पड़ना, बिकॉज इसकी वर्टिकल मोशन तो है नहीं। इसकी फ्री बॉडी इक्वेशन क्या बनेगी? mg 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 minus minus t t minus f is equal to ma1. फ्री बॉडी इक्वेशन फॉर स्मॉल एम, mg minus t minus mu r is equal to ma1. r कितना? r कितना? नॉर्मल रिएक्शन कितना है? नॉर्मल रिएक्शन कितना लूं मैं? बिकॉज अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करता हूं तो t तो कैंसिल हो गया, तो बिना r के सॉल्व तो होगा नहीं है। r कितना लेना है? चलेगा, ले लूं ma1। r को ma1 ले लूं, डायग्राम देखो ध्यान से।
आर को MA1 लूं या नहीं लूं? सर पर एक टेंशन भी तो हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है उस पे एमए के बाद। किस पे? सर बट जो वेज है मास है। नॉर्मल कैपिटल रिएक्शन में एम पे। टेंशन का क्या करना है? मैं तो आपसे नॉर्मल रिएक्शन पूछ रहा हूँ। नॉर्मल रिएक्शन को MA1 लूं या नहीं लूं? सोच लो। सर एक बार ऊपर से डायग्राम दिखा दो। डायग्राम, ओके, लो जी डायग्राम, ये लो डायग्राम। मेरे को सिर्फ R का बताओ, R को मैं ऐसे लूं या नहीं लूं? R इज इक्वल टू MA1। सर ले सकते हैं MA1। ले सकते हैं? ले सकते हैं? सर बट वो तो डाउनवर्ड लग रही है ना। इस साइड फोर्स कितनी लग रही है इस ब्लॉक पे? R, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या था? फोर्स इज इक्वल टू न्यूटन सेकेंड लॉ क्या आता है? फोर्स किसके इक्वल MA होनी चाहिए? मास इनटू एक्सेलरेशन। इसकी एक्सेलरेशन कितनी है? A1 A1 वो तो ऐसे है ना, ऐसे भी है, सर इक्वल है ना। बिकॉज वेज एक्सेलरेट करेगा तो ये भी तो साथ में करेगा। वेज अगर जाएगा राइट साइड तो ये ब्लॉक को साथ ही लेके जाएगा। तो ये ब्लॉक सिर्फ नीचे नहीं आ रहा, ये नीचे भी जा रहा है और उधर भी जा रहा है। वेज इधर जा रहा है तो ब्लॉक इधर जा रहा है A1 से, और साथ में नीचे भी आ रहा है। सो इसके पास दो एक्सेलरेशन है, A1 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और A1 वर्टिकल डायरेक्शन में, और उस A1 की ये वैल्यू आ गई। तो A1 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, G बाय आपको बताना था एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक रिलेटिव टू ग्राउंड। ये आंसर है। आया कुछ समझ गए? नहीं? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर आपने बोलो। जो राइट साइड आपने फोर्स किया वो आपने बैकवर्ड वेज के लिए, ब्लॉक की जो राइट साइड फोर्स लगी है वो आपने कौन सी बैकवर्ड डायरेक्शन में ली? नॉर्मल रिएक्शन आर जिसको भी हम MA लिख देते हैं। हाँ, तो अगर मतलब आप ब्लॉक पे फोर्स लगाते हो, इस पे अगर मैंने फोर्स इधर मार्क की तो वेज पे ऑपोजिट ही करेगी ना। एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट। तो जब आपने बैकवर्ड बोला था अब तो बैकवर्ड ही है ना ये वाली फोर्स।
अगर इस पे फॉरवर्ड लगेगी तो वेज पे बैकवर्ड लगेगी। सर एक बार आप वेज से आर डैश और आर की डायरेक्शन बता दो। आर डैश का तो कुछ किया ही नहीं हमने वर्टिकल डायरेक्शन में। ये फोर्स है जो स्मॉल एम ने कैपिटल एम पे लगाई, ये ग्राउंड ने वेज पे लगाई। ओके सर आ गया। मेरे को ये बताओ, ये मैंने लास्ट स्टेप में क्या कर दिया, ये क्या कर दिया? ये कौन सी एक्सेलरेशन थी? ये एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक है या एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक रिलेटिव टू वेज है? relative to that. रिलेटिव टू Relative to वेज। wedge. इसका मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक रिलेटिव टू वेज मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक माइनस एक्सेलरेशन ऑफ वेज। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक क्या हो जाएगी? एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक कितनी है हमारे पास? मैग्नीट्यूड कितना और डायरेक्शन कितनी है? एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक रिलेटिव टू वेज। जी कैप डायरेक्शन मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन ऑफ वेज कितनी है? आई कैप। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक का मैग्नीट्यूड अगर मैं लिखूं रिलेटिव टू ग्राउंड, ये कितना हो जाएगा? इट्स अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर मतलब रूट 2 a1। तो जो a1 निकाला था उसको रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। वेक्टर्स, ये दोनों एक्सेलरेशंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर थी, एक्सेलरेशन ऑफ वेज और एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक रिलेटिव टू वेज। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ये आएगा रूट a1। आपको बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे लॉज ऑफ मोशन आसान है, उनको देना ये क्वेश्चंस कहना करके दिखा। आसान वो है जैसे मैंने पिछली बार ही कराए थे, वो क्वेश्चन कराऊंगा तो वो तो आसान ही होते हैं। सर इंटरेस्टिंग है पर कुछ भी नहीं। इंटरेस्टिंग है पर दिमाग आपका भी चलना चाहिए ना, सिर्फ मेरे चलने से नहीं होगा। बिकॉज वो लास्ट टाइम जो कराए थे वो स्कूल का लेवल है, स्कूल में तो वही आना है। तो लॉज ऑफ मोशन जिसको आता है उसको ये सब आना चाहिए। और सुबह मैंने किसी और बैच के डाउट्स लिए थे, वो इसलिए वीडियो डाला था। सुबह क्लास आपके बैच की नहीं थी, वो HC वर्मा के डाउट्स लेने थे मेरे को किसी के, इसलिए वो क्वेश्चन सेंड किए थे मैंने कि आप भी देख लेना। सर उनमें से एक क्वेश्चन वीडियो ब्लर आ रही तो थी। उसमें लास्ट वाला क्वेश्चन समझा। सर यस उसमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और रिलेटिव एक्सेलरेशन ले लो बस, a1 माइनस a2। अगर तो आपने ब्लॉक मुझे राइट टेबल साइड पे का जा रहा है, सारा सिस्टम राइट साइड पे जा रहा है, तो दोनों पे फ्रिक्शन लेफ्ट साइड पे लगेगी। ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स ली थी μ2 mg, तो उसके नीचे वाले पे μ/2 mg फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेनी थी बस, और रिलेटिव निकाल देना था। सर पर आपने फ्रिक्शन उस ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शंस ली थी ब्लॉक वाली और ग्राउंड। यार ऑपोजिट तो एक्ट करेगी, ये ऐसे था वो सिस्टम। ये v से मूव कर रहा है, ये भी v से मूव कर रहा है, तो ये v से मूव करेगा, इस पे फ्रिक्शन μ/2 mg, तो इसका रिएक्शन इस पे μ/2 mg, और ग्राउंड का फ्रिक्शन इधर। बस इतना सा तो क्वेश्चन था ये। बिकॉज इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन μ/2 दी थी, इधर म्यू दी थी, तो ग्राउंड की फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट, पर अपर ब्लॉक पे बिकॉज फ्रिक्शन बैकवर्ड है तो लोअर ब्लॉक पे ये ऑपोजिट आएगी ना। ये तो एक्शन रिएक्शन पेयर है इंटरनल फोर्सेस का। ओके सर। नेक्स्ट लिखो। क्वेश्चन देख लो, सारे सरफेस फ्रिक्शनलेस हैं assuming friction to be negligible। हमने बताना है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ प्रिज्म। सेम डायग्राम है, पहले ही क्वेश्चन में भी यूज हुआ है,
हमने बताना है प्रिज्म की एक्सेलरेशन कितनी है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ प्रिज्म, इसको खुद से सॉल्व करो। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ प्रिज्म। अरे बच्चों वाला क्वेश्चन दिया वो भी नहीं कर रहे, उसको भी लेके बैठ गए हो। तो दिया आपको। अब मैं उठ गया यार, अब मैं दोबारा नहीं देख रहा, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। मास हमारे को दिया है प्रिज्म का, प्रिज्म ऑफ मास m1 जी। अगर मैं इसका बनाता डायग्राम तो ये नॉर्मल रिएक्शन R m2g cos अल्फा सो हमारे पास ये कंडीशन है m2g cos अल्फा इज इक्वल्स टू r प्लस m2a sin अल्फा। तो r की वैल्यू मेरे पास आ गई m2g cos अल्फा माइनस m2a sin अल्फा। इसकी इक्वेशन आ गई r sin अल्फा इज इक्वल्स टू m1a। r की वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा। अगर मैं r की वैल्यू डाल दूंगा यहाँ पे तो इट वुड बी m2g cos अल्फा sin अल्फा माइनस m2a sin स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू m1a। ठीक है, m2g cos अल्फा sin अल्फा m2 प्लस m2 sin square alpha into a. So a comes out to be g cos alpha sin alpha upon m1 तो नहीं था, m1 था ये। ये आंसर है। so क्वेश्चंस दोबारा से देखना सारे, नेक्स्ट टाइम करते हैं इसके आगे। सब पीडीएफ सेंड कर।